ओके, ये जो है ऐसे भेजेगा या सीधा भेजेगा, आप ये म्यूजिक ऑन, वो म्यूजिक जब पहुंचता है वो भी ऑन, ये ना हम लोगों का वॉइस मीटर, क्योंकि आपको पता है 16 वोल्ट पर -80 तक ना टेस्टिंग करने के लिए लोग virtual मतलब सिमुलेशन करना चाहते हैं। Temperature sensors, like we put more than 5 temperature sensors, as you can see. इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली एक्यूरेट को सिमुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि इधर होल्ड हो गया था कैमरा, तो उससे जो साइंटिस्ट थे उधर हम लोगों ने बताया कि ये जो होल्ड में भी कोल्ड वेदर जो है वो नीड हो जाएगा अंदर, और आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसको डैमेज कर जाएगा। -80 आपको वो हो जाएगा जो ऑपरेट देखेंगे हम लोग। पलटू पेज कौन एक्सप्लेन करेगा? Was ready to explain the payload to everyone. We thought that we'll make it in a triangular shape, but the scientists there suggested us that this would be better. So we went for the rectangular shape. Then the whole box is made up of thermocol, as it's a great insulator, and it helped us to control the temperature inside. Inside we had several components, as we had an Arduino, we had a speaker module, and we also had a GPS and GSM module, and 2 GoPros for a camera. One was as a backup, and the GoPros were kept here so that we could see this mascot and the flag. Then the Arduino was coded to start the music after a period of time, and it was also connected to our cameras to start it after a period of time, as we were not allowed to record or play any sound till the height of 5 kilometers, as it was restricted. There were many military facilities and nuclear facilities here. It was illegal. So we calculated that how much time will it take. It was taking around 16.6 minutes. So they coded it like that, and after 16 to 20 minutes, we started the camera and the speaker. So its target height was around 1,80,000 feet, and it accomplished it 32 kilometers in kilometers. And Yeah, so add-on, stand up and add-on. Yeah. Had an aluminium base. First, we were thinking that we can take any other metal base, but aluminium base was better because it is lightweight and it's also durable. And then we had our national flag and the fighters plane. Thank you. Yes. Sumit, can you tell about the thermal box and the field? So this is our payload, and this is made up of high density thermocol. Okay, Adya, can you tell us why thermocol? From? From coal. Yes, that is. So now I'm going to show you a live demo of the speaker project. So This is a subsystem of the field. yes.
it went like it went like really far into the atmosphere. I think something like 12 miles. Yeah, I mean 32 kilometers. Okay. And भी बताओ। जानते हैं कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो हम लोग उसको बचाने के लिए कुछ एयर ट्यूब का यूज करते हैं। तो वैसे ही हम लोग देख सकते हैं ये सैटेलाइट वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये सैटेलाइट पानी से खराब हो सकती है और अगर ये गलती से जब लैंड करे तब हो सकता था कि नदी में गिर जाए। तो और जब लैंड करे तो उसके बगल में एक नदी थी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर ये हम लोग एक और कुछ सैटेलाइट बनाए तो नीचे हम लोग एक एयर ट्यूब लगा सकते हैं और वो हम लोग कंप्यूटराइज कर सकते हैं कि जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के नीचे आए, क्योंकि अगर ऊपर ही अगर हम उसको हवा में भर देंगे तो वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा पूरा, अगर पानी गिरा तो जब वो वापस आए तो वो कंप्यूटराइज तरीके से वापस हम लोग हवा भर सकते हैं और जब वो गिरे तो अपने आप वो पानी में तैरने लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग बच जाएगा पानी में। ठीक है, अच्छा सर लोग एक बार विजन प्रोफाइल को भी बता दें। ठीक है, अभी बैठ करेंगे तब। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव और हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कलाम लैब में मौजूद हैं। ये लैब वो है जो खेलने वाले बच्चों को अंतरिक्ष की बातें सिखा रही है। 3 दोस्तों ने मिलकर के एक स्टार्टअप शुरू किया है जो लखनऊ में है और कुछ बड़ा कर चुके हैं। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हम इनसे जानते हैं कि क्या सोचा इन्होंने, कैसे सोचकर इतनी बड़ी चीज के बारे में और फिर उसको शुरू किया है, जो आज हम इसमें मौजूद हैं। और तमाम सारे बच्चे हैं और जो वैज्ञानिक बनने के लिए, देखिए, जो खेलने की उम्र में है लेकिन वो यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा खुश हैं और उनको कहना है कि हमारा बड़ा इंटरेस्ट है और अभी तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराने पे इतनी खुशी है। आगे जब करेंगे तो उसके बाद जो बड़ा कारनामा करेंगे उसके बाद तो और खुशी होगी। तो आप लोगों ने कैसे सोचा, कैसे मन में कि हम, बहुत लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, पढ़ने जाते हैं उसके बाद वो करना नहीं चाहते, लेकिन आपने बहुत बड़ी चीज की। कैसे आपके मन में आया कि हम अंतरिक्ष को लेकर दूसरों की तर्ज पर हम काम करें, तो एक अलग स्पेस हम बनाए। तो जैसा हम सब लोग देख ही रहे थे कि इसको हम लोग की वैज्ञानिक चांद पर, सूर्य पर, सब जगह गगनयान, अभियान मिशन जा रहे थे। और सारे बच्चे ही अगस्त में जब चंद्रयान हुआ था तो बहुत ज़्यादा खुश थे। जब हम लोग ने देखा कि बच्चों में इतना उत्साह है तो हम लोग क्विज़ेज और प्रोग्राम तो कराते ही थे स्पेस के। तो हम सब लोग कई बच्चों ने बोला कि क्यों ना हम लोग अपना खुद का एक स्पेस मिशन करें और ये इस तरीके से कर पाएँ कि हम लोग का देश का नाम और भी ज़्यादा ऊँचा जाए और सब जगह इसके बारे में काफ़ी हो सके। तो इसीलिए हम लोग ने अंतरिक्ष में जाकर झंडा फहराया। ये सब जितने बच्चे हैं यहाँ पे, इनके साथ हम लोगों ने पूरा एक पेलोड बनाया जो वहाँ की दुर्गम परिस्थितियों में चल पाए, टेम्परेचर को झेल पाए और सफलतापूर्वक हमको हमारा वीडियो और हमारे झंडा का पूरे सम्मान के साथ वापस। चुनौती तो रही होगी ना बहुत सारी? बहुत चुनौती रही थी, मतलब लगभग 1,18,000 फीट तक का ऊपर जाना। वहाँ -80 डिग्री टेम्परेचर होता है, प्रेशर यहाँ से 1000 गुना कम होता है और वो ऊपर कहाँ जाएगा, किधर गिरेगा, प्रॉपर ट्रैक होता रहे और सारी चीज़ें सही से चल जाए। तो चुनौती भी थी। इन सब बच्चों ने भी साथ में मिलकर हम लोग ने चीज़ें करी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, करते करते हम लोग अपना आगे क्या प्लान? आगे हम लोग जैसे आप देख सकते हैं कि ड्रोन लैब में हम लोग बैठेंगे कि यहाँ पे हम लोग नए नए ड्रोन्स बना रहे हैं और आगे हम लोग IIT कानपुर के साथ एक हम लोग का नया जो स्पेस मिशन है जिसमें हम लोग बलून के द्वारा एक ड्रोन को अंतरिक्ष के पास प्रक्षेपित करेंगे ताकि वो सैटेलाइट के काम कर पाए। तो इस प्रोजेक्ट में भी कई यहाँ बच्चे हैं जो सोलर रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे साथ देख रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है और इसको हम लोग असली धरातल पे कैसे हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत करना होता है। किस तरीके से आपने मन में प्लान किया और कैसे जो खर्च था इसके पीछे कैसे बताया और फिर आप आज कहाँ पे खड़े हैं जहाँ पर आप सक्सेस हैं? जी, हम लोगों ने ये 21 साल की उम्र या कॉलेज से ही शुरू कर दिया था कलाम लैब्स को। और उस समय जब हम लोगों ने शुरुआत के समय ही हम लोगों को काफ़ी इन्वेस्टर्स सिलिकॉन वैली के, उनने हम लोगों को फंड किया, हमारी मदद करी। वो काफ़ी उच्च इन्वेस्टर जैसे कि बाय कॉम्बिनेटर, लाइट्स की और काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर भारत के जैसे कुणाल शाह, गौरव ने हमारी सहायता की, जिसकी वजह से आज हमने नींव डाल पाए इसरो फॉर किड्स की।
और उन्हें हमें पूरा वो प्रमोट किया कि भाई हम लोग अपने पैशंस को फॉलो कर पाएँ और बच्चों के स्पेस मिशंस को आगे से आगे ले जा पाएँ। जी जी। तो तिरंगा जो आपने फहराया उस प्रोग्राम में कितना समय लगा? 2 महीने में हम लोगों ने यार पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक किया। बच्चों के साथ ही इसका सारा आइडिएशन किया, इसका डेवलपमेंट किया और आखिर में 26 जनवरी 2024 में हमने तिरंगा टाइप आर हैदराबाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बच्चों को करके और आज आप यहाँ खड़े हैं, छोटे बच्चे आपके पास तो आप पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने ये सर हम लोगों ने हम तीनों ही बचपन से बहुत ज़्यादा अंतरिक्ष में रुचि रखते थे। हम तीनों को बहुत ज़्यादा ही जब कोई चंद्रयान मिशन जाता था या आदित्य मिशन जाता था तो हम लोग सोचते थे कि ऐसा मिशन हम लोग भी भेज पाएँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम लोग खुद का एक स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे आगे जाके। तो हम लोगों को जब ये इस तरह का एक रुचि बच्चों में भी दिखी और कि हम लोग केवल देखना नहीं चाहते इस तरह के मिशंस को बनाना भी चाहते हैं हम लोग खुद से, तब हम लोगों ने इस चीज़ पे और ज़्यादा निश्चित होकर काम करना शुरू किया कि हम लोग बच्चों को इस तरह के मौके दें जहाँ पे वो अपने बहुत ज़्यादा वो लोग खुश तो हैं ही सही कि भारत जा रहा है, पर उनको एक इस तरह का मौका मिले कि भारत का तिरंगा वो भी स्पेस में जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर तक ले जा पाए। तो उसी का ही उदाहरण ये वाला मिशन था जो अभी हम लोगों ने अभी सक्सेसफुली खत्म किया है। तो बच्चों का सिलेक्शन किस तरीके से आप लोग करते हैं? कैसे बच्चे, इतने सारे बच्चे आपके पास आए? तो जैसे हम लोग हर महीने लगभग एक नेशनल लेवल की क्विज कराते हैं। लखनऊ में भी हम लोगों ने अक्टूबर के महीने में साइंस सिटी में हम लोगों ने स्टार पार्टी कराई, 50 लोगों ने टेलीस्कोप लगे थे और कई सारे बच्चों ने एस्ट्रोनॉमी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो आप सब बच्चे देख रहे हैं ये सब लोगों ने लगभग 4000-5000 की सारे रेजिस्ट्रेशन आए थे, उनमें सबको हरा के रोज सबसे ज़्यादा सवाल सॉल्व करके यहाँ पे सभी टॉपर भी हैं एस्ट्रोनॉमी के। इन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल सॉल्व किए, जैसे ये सब अपूर्व, स्वर्णिम, विराट, ये सब उन्होंने कम से कम 4 से 5000 प्रश्न हल किए हैं और उसके बाद ये लोग यहाँ पे भी आ पाए। जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतनी बड़ी परीक्षा को करके फिर आना है आपको, उतनी बड़ी परीक्षा लेकर के ऐसी तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब बच्चे कलाम लैब्स ऐप पे सारे क्वेश्चन और कोशिश कर पाते हैं। तो ओपन ऐप रहती है, जो बच्चा चाहे आ सकता है, इसमें कंप्लीट करे। अगर आप में प्रतिभा है तो आप हमारी टीम में ज्वाइन करें। तो कह सकते हैं कि ज़्यादातर रुचि दिखाया लोगों ने, बहुत रुचि दिखाया भारत में और स्पेशली उत्तर प्रदेश के जो 10 करोड़ बच्चे हैं उनमें अंतरिक्ष के लिए बहुत रुचि है। और हमें ये भी लगता है कि कहीं हद तक का इतना इसका कुछ संपन्नता नहीं आ पा रही क्योंकि मौके बड़े कम हैं। इसीलिए हम लोग उनको स्कूल लेवल पे ये मौका मिल पाए कि बना पाए, इसीलिए हम लोग सोच रहे हो जी हमारे जो क्विजेज होते हैं वो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कोई भी बच्चा निःशुल्क हमारे क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकता है और सिलेक्ट हो सकता है ऐसे बड़े स्पेस में पार्टिसिपेट। उसके बाद फीस वगैरह कुछ है? जी हम लोगों ने इन 25 बच्चों के जो सिलेक्ट हो गए थे डायरेक्टली वर्क करे थे उनकी हमने कुछ 800 रुपये की फीस रखी थी जिससे हमारा कुछ वो चल पाए, बट ओवरऑल हमारा निःशुल्क रख के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने का ही इरादा है। तो अभी ये पहली बैच है, ये पहली बैच। उसके बाद नेक्स्ट मैच जैसे अभी शुरू ही हो गई है। हमारा आईटी कानपुर के साथ प्रोजेक्ट 1 महीने पहले ही शुरू हो गया था डॉक्टर अभिषेक के अंदर। तो अभी जैसे हम लोग आज ही इनको ब्रीफिंग दे रहे थे ड्रोन्स के बारे में, तो एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और इसका कॉम्पिटिशन भी 4 फरवरी से नेशनली शुरू होने वाला है। बैंगलोर, उत्तर प्रदेश, सारे तरफ से स्कूल, ज़्यादा बच्चे इस बार आएंगे। लगभग 15,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हम लोग के पास और उससे ज़्यादा हम लोग को उम्मीद है कि 4 तक का कई लगभग 30-40 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों से जो बच्चे पहली बैच में यहाँ पर क्या सीखा है लोगों ने। तो आप पहले तो ये बताइए अभी जानकारी मेरी अपनी क्लासरूम में कलाम लैब्स के नाम से एक मैसेज आएगा और फिर उसके हिसाब से उसके थ्रू मैं कलाम लैब्स में रजिस्टर किया। उसके बाद मुझे पता चला स्टार फीस के बारे में, तो फिर मैंने उसको अटेम्प्ट किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ क्या सीखा? यहाँ मैंने कई सारे स्पेस मिशन के बारे में जाना और मैंने कई सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि मैं आजकल हेल्प कर रहा हूँ ड्रोन्स बनाने में। मुझे बचपन से ही लगता था कि जब जैसे
ज़्यादा दूर जाता था, तो मुझे मन करता था कि उस टाइम कभी मैं भी वहाँ जा पाऊँ, तो कभी मैं भी वहाँ जा पाऊँ। तो लग रहा है आप ठीक जगह हैं। मुझे लग रहा है नाम बताइए। मेरा नाम सोनू है, मैं जीडी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अविरल त्रिपाठी है और मैं स्टडी हॉल स्कूल से हूँ। तो मतलब मेरा ये था कि बचपन से ही मुझे स्पेस में बहुत रुचि थी और मैं काफ़ी मूवीज़ भी देखता था और काफ़ी रॉकेट मिशंस और ये सब भी इसरो के मैंने देख रखे थे। और फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई तो मैं और जानता गया, जानने की कोशिश करता गया स्पेस के बारे में। और फिर मुझे भी अपने स्कूल के थ्रू ही कलाम लैब्स के बारे में पता चला, तो मैंने तुरंत ही मतलब इसे ज्वाइन कर लिया और ये यहाँ पर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज़ें जानने को मिलती हैं जो हम किसी भी आम आदमी से ऐसे नहीं सुन सकते कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। और बहुत सी नई नई चीज़ों के बारे में जाना कि एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसको कैसे हम लोग मतलब हम उसे काउंटर करते हैं और कैसे हम ये सब करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, कलाम लैब जैसे और भी संस्थाएं होनी चाहिए कि जैसे कि हर संस्था के लिए, जैसे डॉक्टरी के लिए आपको एम्स मिल जाएगा, इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत अच्छे स्कूल है जैसे कि IIT है, बस स्पेस साइंस को कोई ध्यान नहीं देता है। स्पेस साइंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस है क्योंकि हमको आगे जाना है, हम चेंज ला सकते हैं। एक स्टोरी आपको मैं बुक सजेस्ट करूँगा, हु मूव्ड माय चीज़। उसमें होता ये है कि आपको चेंज के बारे में वर्क करना होता है कि चेंज जो होता है, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको स्पेस में मूव करना होगा जिससे कि हम अपने जैसे और वर्ल्ड ढूंढ पाए जिनमें हमारे जैसा क्लाइमेट हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो, एक्सेट्रा। बड़ा कठिन काम है। हाँ, लोग समझ नहीं आता है। कठिन तो होता है पर आसान भी होता है। एक तरीके से कठिन है और एक तरीके से आसान भी है, यानी कि 2 साइडेड ये स्वॉर्ड है। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर आपको उसमें रुचि है तो आपके लिए वो आसान है, और मुश्किल वही चीज़ होती है जिसमें आपकी रुचि नहीं होती है, तो वही चीज़ है। आपकी रुचि है? हाँ, मेरी रुचि बहुत अच्छी है। क्या चाहते हैं आप आगे? मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी देश की सेवा करूँ बाय बिकमिंग अ स्पेस साइंटिस्ट, जिससे कि आगे जाके हम लोग और इसरो को और अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएँ। जब पहले प्रोजेक्ट में काम करते थे, क्या सोचे थे आप कि पहले हमारा जाएगा और ऊपर फैला जाएगा? बहुत बार ऐसा भी लगा था कि नहीं हो पाएगा, जैसे कि हमने दूसरा जो हमारा पहला और दूसरा अटेम्प्ट हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो ये एरोप्लेन वाले बलून्स मिलते हैं आपको रास्ते में, उसके बहुत बड़े गट्ठर से हमने उसको हरदोई तक पहुंचाया था। तो उस वक्त हमको ऐसा लगा था कि शायद ही ना पहुंच पाए, पर देखिए आज वक्त बदल गया, 1800 फीट पे पहुंच गए हम लोग। पहले हरदोई? हाँ, पहले हरदोई फिर स्पेस। छोटी गुड़िया है, बताओ तो आप अंतरिक्ष के लिए सीखना चाहती हैं, एरोस्पेस करना चाहती हैं? और मुझे जैसे जो स्पेस मिशन है वो तो बहुत ही अच्छे ही लगते हैं। कलाम लैब जैसी अच्छी चीज़ें में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इतना इम्पोर्टेंट है कलाम लैब इस समय। आप लोगों के लिए वहाँ पे जो चाहते हैं कि स्पेस के बारे में सीखा जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम लोग तो पहले कंप्यूटर के बारे में सीखते थे और अब स्पेस में आ गए और हमें अब और भी आगे जाना है। आपने सीखा कुछ नहीं? हाँ, बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये भी सीखा कि जैसे बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, ये भी सीखा। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे जब बड़े हो जाए कुछ तो क्या करेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे। हाँ बाबू। कलाम लैब से मुझे बचपन से बहुत सारे लोग आगे बढ़ते जाइए। देखिए तमाम सारे बच्चे हैं, सर हर बच्चा बोलना चाहता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि सबसे बात की जाए, लेकिन गुड़िया से हम जरूर बात करेंगे। तो आपने क्या सीखा? क्योंकि हम देख रहे थे आप बहुत बार पलट के किताब पढ़ रही थी वहाँ। बहुत अलग अलग चीज़ें भी होती हैं स्पेस में,
और सब चीज़ें भी सीखते हैं। स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है स्कूल में? स्कूल में स्पेस के बारे में नहीं सिखाया जाता, पर स्कूल में हमें एक आइडिया मिला था कि हम कलाम लैब ज्वाइन कर सकते हैं स्पेस के बारे में देखने के लिए। तो यहाँ आप जैसा सोचे तो वैसा मिला यहाँ आप आकर के आपको? हाँ, वैसे ही मिला। तो आपने भी तिरंगा वाले प्रोजेक्ट में कुछ किया है आपने? मैंने तिरंगे वाले प्रोजेक्ट में भी नहीं पता था, तो मैंने भी उसको पता नहीं। चलिए, और कोई बोलने वाला है? आओ अभी तरह आप बताओ आप करता है। तो मेरा नाम मकबूल तिवारी है और मैं इससे जामा चाहती हूँ। मैं आपसे एक चीज़ बोला कि लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, और स्पेस के बारे में क्यों नहीं देखना। असल में जो बच्चे हैं वो घर के अंदर पैक रहते हैं और जो कभी बाहर निकलते हैं तो दिन के समय निकलते हैं, कभी कोई रात को छत पे जाके तारे देखता है। बहुत कम। और एक तो शहरों में होता है लाइट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। तो जो गैलेक्सीज है हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, तो अगर आप लद्दाख की साइड में जाएंगे या फिर हिमगिरी के पर्वत के पास आपको मिल्की वे दिखेगा। लोग वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं ना, तो लोगों का अंतरिक्ष के लिए जागरूक हो ही नहीं रहे कि मतलब अंतरिक्ष में क्यों जाएं। प्लस स्कूल में आप लोगों को ये मतलब बेसिक सिखाया जाता है, लोगों को ये फोर्स किया जाता है कि लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता। जैसे हॉकिंग रेडिएशन हो गया, ऐसी चीज़ें तो पढ़ाई जाती है नहीं, और ये भी मोटिवेट नहीं रहता तो आगे बच्चे को कैसे बनेंगे। हाँ, हमारा स्कूल है जो थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है तो लोग बाकी स्कूल है। तो कलाम लैब है ना? हाँ है, कलाम लैब तो है, तो ज्वाइन किए। और भी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, और बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें। तो आपने सीखा कुछ? तो ये बच्चे रहे, ये वो तीनों मित्र हैं जिन्होंने बताया किस तरह की चीज़ें शुरू हुई हैं, बच्चों ने क्या सीखा, उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। अगले मिशन को ये लोग जो जुटे हैं उसके वो भी सक्सेस हो, ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और आए बच्चे और सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें और देश तरक्की करे। 3, 2, 1, we are science! बच्चे को चार्टिंग नहीं करना, ऐसे में आप बच्चे आगे के अंतिम की बातें सीखते हैं, कैसे पता चला और उसके बाद फिर आप रुचि दिखाई दी बच्चा बताया कि जब आपको रुचि दिखाई दी तभी आप बच्चे को लेके आए। मेरी फ्रेंड है एमपी बदायूं से संगीता हुआ है, तो उनको लोकसभा से ये लिंक दिया गया था, तो उसने मेरे को लिंक दिया कि ताक्षी को एडमिशन कराओ, वो अभी छोटी है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ से एक्सपोजर मिलेगा। तो इनको लेके मैं फर्स्ट टाइम साइंस सेंटर गई थी जहाँ पे इनका कोर्स हुआ था। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बच्चे थे, वहाँ पे छोटे भी थे बड़े भी थे। तो वहाँ जब मैं गई तो वहाँ पे इन लोगों को जो प्रैक्टिकल सिनेरियो था, टेलीस्कोप पे उनको सारे प्लैनेट्स को दिखाना, स्टार्स को दिखाना, ये मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था और ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था मेरे लिए। जो उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग कराया था दैट वाज वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। उसके बाद में इन्होंने क्विज़ेस और भी अटेंड करे, वो भी बहुत अच्छा था। फिर बैलून वाले में हम लोग आए थे, वो भी बेहतरीन था। अब यहाँ पे जब लेके आई मैं बच्चों को, मुझे पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस का और यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ का होना है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऑफिस से RMSK में जॉब करती हूँ, तो वहाँ से आई हूँ। मुझे ये कॉन्सेप्ट इसलिए और अच्छा लगा, मैं मोस्टली फॉरेन कंट्री से मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे बताते हैं वहाँ पे बच्चों को बुकिश नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है। तो ये वे यहाँ पे कलाम लैब्स में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ सेम। हमारे हिंदुस्तान में ये जो लॉन्चिंग, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे लखनऊ सिटी में ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जो वो प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखेंगे, वही वो सीखेंगे, वही वो आगे करेंगे। आज अगर मैं पहले कुछ सालों पहले की बात करती हूँ तो 8th 9th क्लास के बच्चों को इसरो नासा नहीं पता। आज क्लास 2nd 3rd 4th क्लास के बच्चों को इसरो नासा प्लैनेट्स क्या है, कौन सा प्लैनेट कहाँ होगा, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू हम नेकेड आई से प्लैनेट्स को देख सकते हैं, लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज है। तो कम से कम पढ़ने के साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकल चीजें बच्चों को सिखाई जा रही है, और ये हम इसके यूनिक सेंटर है, क्योंकि ऐसा सेंटर और होगा कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितने एफर्ट्स ये लोग करते हैं, जेन्युइन एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि कुछ उनका कि नहीं एक बच्चे से ही एफर्ट्स है, जो भी आ रहा है उससे एकदम सिंपल, सबके साथ नॉर्मल बिहेवियर, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ एक ग्रुप पढ़ने के बाद फिर बच्चे को कुछ रिस्पॉन्स मिला, आपने बात करी होगी?
बच्चों का द वे ऑफ टॉकिंग, उनका डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। पहले वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स डिस्कस करते थे, अब वो रील्स भी देखते हैं तो इसी से रिलेटेड देखते हैं। यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो वो यही चीज़ सर्च करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। आज स्कूल में गई, आज मुझे बता रही थी, मैंने अपनी टीचर को बोला कि मुझे वहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो उन्होंने पूरा अपनी क्लास में एक्सप्लेन किया कि ऐसा हुआ था, लॉन्चिंग हुई थी, मैं गई थी, उसकी पार्ट करा था, मुझे वहीं पे जाना है, आज जाना है। तो मतलब द वे शी इज नॉट स्टार्ट रिस्पॉन्सिंग। कम से कम जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक स्पेस और जगह है। बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा यहाँ आने के बाद ना। कमाल है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कलाम लैब्स का, और मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट करूँगा इनको, स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स हैं, यंग एज में ये इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं। इसके बाद बहुत ईजी ऑप्शन है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एक कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे उन्होंने इंडिया में स्टार्टअप किए जाने की कोशिश की और सबसे जैसे शायद में किया, जिससे कि और बच्चों तक एक्सपोजर मिले। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं एक्चुअली यूएस में था 16 साल, और मेरा बेटा जब 2022 में इंडिया आया तो उसको हिंदी नहीं थी आती, और जब यहाँ के स्कूल में स्टार्ट किया तो उसके लिए थोड़ा सा शिफ्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट था। लेकिन जब यहाँ पर ये मुझे अपॉर्चुनिटी पता चली कि यहाँ तो इतनी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज मिल रही है, तो मैं बहुत खुश हुआ। और मैं थैंक यू करूँगा कि दीदी बनता स्कूल के टीचर्स का भी, क्योंकि उन्होंने ही हमें सबसे पहले बताया कि ऐसा एक इनिशिएटिव कर रहा है। तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और नॉट सरप्राइजिंगली कि आप सोचें कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके वहाँ पर लैंडिंग कर दी, अरुणाचल प्रदेश का सक्सेस हो गया। और देखिए कितना अमेजिंग नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे उन्होंने कलाम किया हुआ है, वो नाम से तो वो कुछ लोगों का नाम इमॉर्टल हो जाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इंस्पायर होकर मैंने और मेरे भाई ने ली थी तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, और मैं इनको अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ कि और आगे जाएँ और जी। तो किस तरीके से पता चला कलाम लैब के बारे में, और फिर आपने यहाँ बच्ची का बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसे पता चला कलाम लैब्स के बारे में कि मेरा बच्चा जो फिलहाल बहुत इंटरेस्टेड है स्पेस टेक्नोलॉजी, और जैसे जितने साइंटिस्ट हैं एपीजे अब्दुल कलाम, सारा भाई, होमी जे भाभा, तो उनकी जीवनियाँ पढ़ी उसने। तो जब उन्होंने उसकी जीवनियाँ पढ़ी तो उसमें इंटरेस्ट हुआ, मैंने रिसर्च किया। तो मैंने रिसर्च किया तो फॉर्चुनेटली लकीली आई फाउंड कि ऐसा कुछ लखनऊ में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे रहा है इन बच्चों को। वर्ल्ड क्लास इन द सेंस कि देखिए वो कोई भी बुकिश नॉलेज दे सकता है, हाउएवर उस बुक को प्रैक्टिकल टेबल पे लेके आना और फिर उस प्रोजेक्ट को करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। सो एज आई मेंशन, ये नया भारत है, ये नए द्रोणाचार्य हैं हमारे, और कलाम लैब्स वो गुरुकुल है जहाँ पे ये बच्चे पंख अपने मजबूत कर रहे हैं, और ग्रेजुअली फिर ये भारत को लेके, नए भारत को लेके उड़ेंगे। और मैं बहुत आशावाद हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं, जो एजुकेशन एडटेक सेक्टर जिसको कहा जाता है, जो टेक्नोलॉजी एज वेल एज एजुकेशन को ब्लेंड करके हमारे जो नई जनरेशन है उसको आगे बढ़ा दें। और जैसे मैंने पहले कहा, नया भारत है तो ये नए तरीके से काम करें। और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू कलाम लैब्स एंड देयर फाउंडर्स कि उन्होंने हम सब के बच्चों को अपने विंग्स के अंदर लिया हुआ और पढ़ाएंगे। तो ये नया भारत है, नई सोच के साथ चीज़ें शुरू हो रही है। तो कलाम लैब की कितना जरूरत है आज के बच्चों में, क्योंकि सोच तो रहे लेकिन उनको जगह नहीं मिली, कहाँ जाए और कहाँ पढ़े, पीछे समझे। कलाम लैब्स का देखा जाए कि जिस हिसाब से अपना वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसको समझने के लिए हमें मतलब इस तरह के जो लैब्स हैं उसमें जाके स्टडी करना चाहिए।
क्योंकि हमें आगे चल के डिफरेंट ग्राम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इसलिए इस अभियान को बहुत उच्च स्तर पे ले जाना चाहिए और इसमें सरकार को काफ़ी हेल्प करनी चाहिए कि जिससे कि और ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। सभी स्कूलों में इसका एक अलग से एक सिस्टम बनाया जाए और बच्चों को मतलब एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जाए और इसकी एक अलग से क्लास होनी चाहिए जी, वीकली होनी चाहिए या मंथली में एक्टिविटीज़ टाइप की। तो उससे बच्चों को नॉलेज आएगा और उनको आगे चलकर बेहतर मतलब साइंटिस्ट बन सकते हैं। जी ये हमारा उम्मीद है कि बच्चों को इससे बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो ये अभिभावक थे, अभिभावक के चेहरे पे आप देखते हैं, उनके भी चेहरे पे खुशी है कि इस तरीके का कम से कम उनके बच्चों को स्पेस मिला। जो बच्चे सोच रहे थे उस तरीके की पढ़ाई मिली और यहाँ पर किताबी ज्ञान नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे बच्चे भी खुश हैं, अभिभावक खुश हैं और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है वो तो खुश हैं।